چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پاس ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ فرشتوں کی ان دعاؤں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ جی۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ کس حرف کو کھینچنا ہے، کسے نہیں کھینچنا، کسے موٹا پڑھنا ہے، کسے باریک پڑھنا ہے، کہاں گنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قاریہ کی 9 آیات سیکھ چکے تھے۔ کتنی آیات سیکھ چکے تھے؟ 9 آیات سیکھ چکے تھے، اور اس سورت میں کل 11 آیات ہیں۔ تو آج ہم 10ویں اور 11ویں آیات سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ قاریہ مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر الف ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ جی الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ہم کھینچتے کتنا ہے؟ ایک الف۔ ایک الف کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اگلے کلمے میں۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی اس سے اگلے والے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ مد منفصل نہیں، مد منفصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف۔ جی 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پر اسے بھی 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، یہاں دال آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ دال۔ دال آ رہا ہے۔ اچھا، دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ میں سے۔ اب آئیے ہم مل کر ان حروف کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ قاف، قاف۔ طا۔ قاف۔ اچھا پیارے بچوں، یہ تا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تا بھی نہیں ہوتا، اسے پڑھتے ہیں طا۔ طا۔
तो सबसे पहला हर्फ कौन सा है? قاف और दूसरा कौन सा है? طا पहला हर्फ कौन सा है? قاف दूसरा कौन सा है? طا तो नहीं, ठीक है, तो طا तो। طا और तीसरा है बा با बा با जीम جيم जीम। جيم और आखिरी हर्फ है दाल دال दाल। دال तो यहाँ पर कौन सा हर्फ आ रहा है? دال और दाल हरूफ कलकला में से है। और प्यारे बच्चों, जब भी हरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, यानी उसकी आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है। यहाँ पर हर्फ कलकला साकिन है तो इसकी आवाज़ भी हमें लौटती हुई महसूस हो गई, ठीक है? جي ठीक है। جي एक और बात नोट कर लें कि दाल उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं। एक हर्फ है दाल और दूसरा हर्फ है गौद। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? باریک किस तरह पढ़ेंगे? باریک बारीक पढ़ेंगे। और जब हम गौद की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? موٹا मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गौद हरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? حرف مستعلیہ हुर्फ मुस्तालिया नहीं, ठीक है, हुरूफ मुस्तालिया। حرف مستعلیہ अगर एक हो तो उसे हम हर्फ कहते हैं और अगर बहुत सारे हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं, ठीक है। हर्फ वाहिद है और हरूफ जमा है, तो जब एक होगा तो उसे हम हर्फ कहेंगे और जब बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे? حروف हरूफ। और हरूफ मुस्तालिया साथ हैं, बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम हर्फ मुस्तालिया नहीं कहेंगे, कहेंगे हरूफ मुस्तालिया। क्या कहेंगे? حروف مستعلیہ हरूफ मुस्तालिया। तो हरूफ मुस्तालिया हैं 7। कितने हैं? 7 कितने हैं? 7 और उनमें से एक दौद भी है, ठीक है। तो दौद को भी हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि हर हर्फ मुस्तालिया को मोटा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। جی फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि यहाँ आ रहा है रा। क्या आ रहा है? رو रा आ रहा है, ठीक है। और रा पर जब भी खड़ा ज़बर हो, जैसे कि यहाँ पर खड़ा ज़बर है, ठीक है, جی तो रा पर जब भी खड़ा ज़बर हो उसे हम पुर यानी मोटा करके पढ़ते ہیں। किस طرح पढ़ते ہیں؟ پوری یعنی موٹا پڑھیں पुर यानी मोटा। किस तरह؟ پوری یعنی موٹا जी। تو यहाँ पर भी हम रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। جی फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है काफ। क्या लिखा हुआ है? کاف काफ लिखा हुआ है। अब काफ भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है काफ और दूसरा हर्फ है कौफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? باریک और जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? موٹا کر کے پڑھیں मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि कौफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? حروف مستعلیہ میں سے हरूफ मुस्तालिया में से। और आपको मालूम है कि हरूफ मुस्तालिया को हम पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, तो कौफ को भी हम मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। جی फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, रा पर तनवीन है, جی ठीक है, तनवीन है और इसके बाद हा आ रहा है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है। क्या होता है बच्चों? زہار इजहार होता है और वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करते, ठीक है। جی अब यहाँ पर आप देख लें, तनवीन है और इसके बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम गुन्ना نہیں کریں नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इजहार हो रहा है, ठीक है। جی फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि आखिर में ये गोल दायरे के निशान हैं, ठीक है। جی ये आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। किसकी अलामत है? یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے आयत के मुकम्मल होने की अलामत है, आयत के मुकम्मल होने की निशानी है, ठीक है। और जहाँ भी ये निशान हो वहाँ पर हम वक्फ करते हैं। क्या करते हैं? وقف वक्फ करते हैं, ठीक है, यानी आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल ता है, ठीक है। और कायदा ये है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर गोल ता हो तो वक्फ करते हुए उसे हा साकिन से बदल देते हैं। तो जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इस गोल ता को हा साकिन से बदल देंगे। किससे बदलेंगे? ہاں ساکن سے यानी ये है हामियतुन। حامیۃ तो जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इसे पढ़ेंगे हामिया حامیہ हामिया। حامیہ
समझ में आया बच्चों? जी। लेकिन यहाँ पर हा पहले से साकिन है तो यहाँ पर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है? जी। अब आइए हम इन आयात को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है? जी। आप सब मिलकर पढ़ेंगे ना? जी। पढ़ें। वमा अदराक मा हिया। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है तो इसे हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है? जी। वमा अदराक मा हिया। वमा अदराक मा हिया। नारुन हामिया। नारुन हामिया। नारुन हामिया। वमा अदराक मा हिया। नारुन हामिया। आपको सारी बातें समझ में आ गई? जी। अब आप में से कौन मुझे ये आयत सुनाएगा? जी आप सुनाएं। वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने पढ़ने की, लेकिन ये मा ही हा नहीं है, ठीक है? मा ही हा नहीं, मा हिया पढ़ें। मा हिया। वमा अदराक मा हिया। वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। नारुन हामिया। समझ में आया? माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, फिर दुआए मदीना में शिरकत करता हूँ, फिर उसके बाद दर्जे में जाकर सबक सबकी मंजिल सुनाता हूँ, मदनी निसाब सुनाता हूँ। उसके बाद वक्फा होता है, नमाज होती है, नमाज होने के बाद कैसा रिसाला सुनाते हैं, रिसाला होने के बाद नेक अमाल का कार्ड भरते हैं, कार्ड भरने के बाद फिर छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम सागी अत्तार मोहम्मद नौमान अत्तारी है और मैं मदरसतुल मदीना शुहदा मस्जिद गियाकताबाद नंबर 10 में नाजिम तालीमी मामलात और मैनेजमेंट यानी इंतज़ामी मामलात की ज़िम्मेदारी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। मदरसतुल मदीना शुहदा मस्जिद कमोबेश 25 साल हो चुके हैं और ये 1995 में कायम हुआ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नाजरा मुकम्मल करने वालों की तादाद कमोबेश 1000 के करीब है और जिसके अंदर हुफ़ाज़ जो हिफ्ज़ कुरान बच्चे करते हैं उनकी तादाद तकरीबन कमोबेश 500 है। और मदरसतुल मदीना शुहदा मस्जिद ये कुल वक्ती का मदरसा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 270 बच्चे कुल वक्ती सुबह 8 से 4 कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके अंदर हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की तादाद 100 है और नाजरा तालीम हासिल करने वालों की तादाद बच्चों की 170 है। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच देखी और ऐसी कई ब्रांचेज़ हैं दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की, जहां पर दावत इस्लामी बच्चों को मुफ्त कुरान पाक की तालीम दे रही है और उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम इंफॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं, जो बातें हम सीखने वाले हैं, वो हैं एक जानवर के बारे में। किसके बारे में? एक जानवर के बारे में। जी, एक एनिमल के बारे में, और वो जानवर है ऊंट। कौन सा जानवर है? ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में कैमल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनोखी मखलूक है और आपको पता है इस जानवर का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। कहाँ आया है? जी, कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है। तो आज हम वो आयत सुनेंगे जिसमें ऊंट का जिक्र आया है और उस आयत के मुतालिक बयान होने वाली कुछ चीज़ें हम सुनेंगे, ठीक है? जी। प्यारे बच्चों,
30वें पारे में, कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है जिसे कहते हैं सूरतुल गाशिया। क्या कहते हैं? जी, सूरतुल गाशिया। इस सूरत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। तर्जमा कंजुल इरफान, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया? प्यारे बच्चों, जब गैर मुस्लिमों ने जन्नत का जिक्र सुना, वहाँ की नेमतों का जिक्र सुना, तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। यानी जब उन्होंने सुना कि भाई जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी नेमत है कि वहाँ पर अल्लाह पाक ने सोने के और हीरों के महल्लात तैयार किए हैं, हीरों के और सोने के घर हैं, और वहाँ के लोगों की सबकी उम्रें 30-30 साल की होंगी, यानी ना उम्र बढ़ेगी ना घटेगी, 30 साल के सारे होंगे। और जन्नत इतनी प्यारी होगी कि वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो जब काफिरों ने ये बातें सुनी तो उनको बड़ी हैरत हुई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ इन नेमतों को सुनकर, और उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या किया उन्होंने? इनकार कर दिया कि ऐसी नेमतें हो ही नहीं सकती और ये सब कुछ गलत बातें हैं। तो अल्लाह पाक ने उन गैर मुस्लिमों से कहा कि वो देखें और गौर करें और इस बात को समझें कि जब अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इतनी अनोखी और प्यारी प्यारी नेमतें तैयार की हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत ज़मीन, इतना खूबसूरत आसमान और प्यारे प्यारे परिंदे, जानवर और मछलियाँ समंदरों में तैयार की हैं, तो क्या वो अल्लाह पाक इस बात पर कादिर नहीं है कि वो जन्नत में भी प्यारी प्यारी नेमतें बनाए? तो जब अल्लाह पाक इतनी प्यारी नेमतों को तैयार कर सकता है, दुनिया में इतनी नेमतें बना सकता है, तो उसके लिए जन्नती नेमतों का पैदा फरमाना तुम्हें क्यों हैरान कर रहा है? तो और अल्लाह पाक ने फिर उनके लिए ऊँट की मिसाल पेश की। किसकी मिसाल पेश की? ऊँट की मिसाल पेश की। और अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या ये ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया? बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें इसके अंदर हैं और ये अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत मखलूक है। मिसाल के तौर पर जब इंसान कोई जानवर पालता है तो या तो वो जीनत के लिए पालता है, या फिर वो सवारी के लिए पालता है, या फिर किसान उसे खेती बाड़ी के लिए पालते हैं, या फिर कुछ लोग उसे गोश्त खाने के लिए और उसका दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है जिसमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। इसे जीनत के लिए भी रखा जाता है, इसकी लोग सवारी भी करते हैं, और इसका गोश्त भी खाया जाता है और इसका दूध भी पिया जाता है, और इसके दूध में अल्लाह पाक ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। कितना अनोखा जानवर है। इसी तरह इस ऊँट को रेत का जहाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत का जहाज। जी, रेत का जहाज़ कहा जाता है। यानी नॉर्मली जो जानवर होते हैं उन्हें रेत में, रेगिस्तान में चलने में बड़ी परेशानी होती है, वो ठीक से नहीं चल पाते, लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है जो रेत में भी तेज़ दौड़ सकता है। तो अल्लाह पाक ने उन लोगों के लिए इसकी मिसाल पेश की कि ये सब चीज़ें ऊँट के अंदर पाई जाती हैं, इतनी नेमतें ऊँट के अंदर पाई जाती हैं जो कि अल्लाह पाक की कुदरत और उसकी शान को जाहिर करती हैं। तो यही वजह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी मिसाल पेश की और इसका जिक्र फरमाया कि जब दुनिया में अल्लाह पाक ने इतनी अनोखी नेमतें पैदा की हैं कि एक ऊँट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़, इतनी सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, तो फिर अल्लाह पाक जन्नत को क्यों नहीं पैदा कर सकता? अल्लाह पाक जन्नत में भी बड़ी बड़ी नेमतें तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ऊँट अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी हमारे लिए नेमत है। तो हमें अल्लाह पाक की नेमतों का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी नेमतें और इतनी अनोखी नेमतें तैयार की हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में जिक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज भी हमारे पास दो टीम्स हैं। मेरी राइट साइड पर है टीम ग्रीन और मेरी लेफ्ट साइड पर है टीम ब्लू। जी, और इन दोनों टीम्स के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हम कंपटीशन के रूल सुन लेते हैं। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स। और अगर आपको उसका दुरुस्त जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद अगर आप दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो शुरू करें जी। तो सबसे पहला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताएं कौन सी सूरत अगर दौरान तिलावत आ जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है?
وہ کون سی صورت ہے کہ اگر تلاوت کے دوران آ جائے تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر جواب نہیں آتا تو آپشن لے سکتے ہیں. آپشن آپشن سورہ جاسیہ، سورہ مائدہ یا پھر سورہ توبہ. توبہ. سورہ توبہ. سورہ توبہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے. پتا تھا یار. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں سورہ صافات کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. سوچ لیں. 30ویں. سورہ صافات 23ویں پارے میں ہے، 30ویں پارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جواب غلط ہو گیا ہے. ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی راتوں کے لیے اپنی قوم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے؟ اگر جواب نہیں آتا تو آپشن لے سکتے ہیں. آپشن 20 راتوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے یا پھر 40 راتوں کے لیے. 20، 30 یا 40؟ 40 راتوں کے لیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں کہ پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ ہے. اس سورت کی آیت نمبر 6 میں کس چیز کے احکام بیان ہوئے ہیں؟ آپشن دوں؟ روزہ اور وضو، یا پھر وضو اور تیمم، یا پھر نماز اور زکوٰۃ. روزہ اور وضو، وضو اور تیمم، یا پھر نماز اور زکوٰۃ. وضو تیمم. وضو اور تیمم. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے بھی آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں وہ کون سی آیت ہے جو کہ تمام آیتوں کی سردار ہے؟ جواب نہیں آ رہا تو آپشن لے لیں. آپشن دوں؟ آیت الکرسی، یا پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا پھر ایسی کوئی بھی آیت نہیں جو تمام آیتوں کی سردار ہو. آیت الکرسی. آیت الکرسی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ٹیم گرین نے آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں وہ کون سی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی؟ آپشن سورہ ملک، سورہ یاسین، یا پھر سورہ رحمان. سورہ رحمان. آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ یہ سورہ ملک کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جسے اماں پارہ کہتے ہیں، اماں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 48. آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ اماں پارے میں 37 یعنی 37 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ٹیم گرین کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی ٹیم بلو آپ بتائیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ اگر جواب نہیں آتا تو آپشن بھی لے سکتے ہیں. آپشن 29 یعنی 29، یا پھر 30، یا پھر 28 یعنی 28. 28. آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ 29 یعنی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی ٹیم گرین آپ بتائیں، یہ اب آپ کا آخری سوال ہے. ٹھیک ہے، سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ آپشن سورہ براءت، سورہ کفارہ، یا پھر سورہ عہد. سورہ کفارہ. آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام سورہ براءت ہے. تو اس سوال میں
ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ آپشن 286، 285 یا پھر 280؟ 286۔ 286 یہ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 10 پوائنٹس۔ کتنے ہو گئے؟ 10 پوائنٹس۔ جی، اور ٹیم گرین کے ہیں 15 پوائنٹس۔ کتنے ہیں؟ 15 پوائنٹس۔ تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم گرین۔ ٹیم گرین آج ہماری ونر ہے، اور دونوں ہی ٹیمز کو انشاءاللہ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یہ لیں ٹیم گرین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ لیں ٹیم بلو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا